जरमिया 26, 27, 28 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। जरमिया 26, 27, 28 किंग्स जेम्स वर्शन में से हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, हम इन वचनों को नहीं समझ सकते हैं पिता। पवित्र आत्मा जब तक आप कुछ देंगे नहीं हमको इसके बारे में समझने के लिए, ये केवल हम पढ़ने वाली बातें ही रहेंगे और हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। आपके राज्य में आपके काम के लिए हमारे हर गलती गुनाह को माफ़ करके हमें परमेश्वर के समानता में बनने की सहायता कीजिए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Jeremiah exhorts to repentance. He is apprehended and arraigned. He is acquitted in judgment. First verse say, in the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, came this word from the Lord, saying, Thus saith the Lord, stand in the court of the Lord's house, and speak unto all the cities of Judah, which come to worship in the Lord's house, all the words that I command thee to speak unto them, diminish not a word. If so be they will hearken and turn every man from his evil way, that I may repent me of the evil which I purpose to do unto them because of the evil of their doings. And thou shalt say unto them, Thus saith the Lord, if ye will not hearken to me, to walk in my law, which I have set before you, to hearken to the words of my servants, the prophets, whom I sent unto you, both rising up early and sending them, but ye have not hearkened. Then will I make this house like Shiloh, and will make this city a curse to all the nation of the earth. So the priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of the Lord. Now it came to pass, when Jeremiah had made an end of speaking all that the Lord had commanded him to speak unto all the people, that the priests and the prophets and till the people took him, saying, Thou shalt surely die. Why hast thou prophesied in the name of the Lord, saying, This house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate without an inhabitant? And all the people were gathered against Jeremiah in the house of the Lord. When the princes of Judah heard these things, then they came up from the king's house unto the house of the Lord, and sat down in the entry of the new gate of the Lord's house. Then spake the priests and the prophets unto the princes and to all the people, saying, This man is worthy to die, for he hath prophesied against this city, as ye have heard with your ears. Then spake Jeremiah unto all the princes and to all the people, saying, The Lord sent me to prophesy against this house and against this city all the words that ye have heard. Therefore now amend your ways. Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord your God, and the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you. As for me, behold, I am in your hand. Do with me as seemeth good and meet unto you. But now know ye for certain that if ye put me to death, ye shall surely bring innocent blood upon yourselves and upon this city and upon
upon the inhabitants thereof. For of a truth the Lord hath sent me unto you to speak all these words in your ears. Then said the princes and all the people unto the priests and to the prophets, This man is not worthy to die, for he hath spoken to us in the name of the Lord our God. Then rose up certain of the elders of the land and spake to all the assembly of the people, saying, Micah the Morashite prophesied in the days of Hezekiah, king of Judah, and spake to all the people of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, Zion shall be plowed like a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of a forest. Did Hezekiah king of Judah and all Judah put him at all to death? Did he not fear the Lord and besought the Lord, and the Lord repented him of the evil which he had pronounced against them? Thus might we procure great evil against our souls. And there was also a man that prophesied in the name of the Lord, Urijah the son of Shemaiah of Kirjath Jearim, who prophesied against this city and against this land. According to all the words of Jeremiah. And when Jehoiakim the king with all his mighty men and all the princes heard his words, the king sought to put him to death. But when Urijah heard it, he was afraid and fled and went into Egypt. And Jehoiakim the king sent men into Egypt, namely Elnathan the son of Achbor, and certain men with him into Egypt. And they fetched forth Urijah out of Egypt, and brought him unto Jehoiakim the king, who slew him with the sword, and cast his dead body into the graves of the common people. Nevertheless, the hand of Ahikam the son of Shaphan was with Jeremiah, that they should not give him into the hand of the people to put him to death. Chapter 27. Introduction. Under the type of bonds and yokes, Jeremiah prophesies the subjection of the kings unto Nebuchadnezzar. He exhorts them to yield. आपको मैं ये इसीलिए ऐसे पढ़ रही हूँ एक एक फटाफट क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ है जब संकट में थे इस्राएल लोग, और यहाँ पर भविष्यद्वक्ता है तो किस प्रकार से वो अपने संकटों को, अपने समस्याओं को, ट्रबल्स को किस प्रकार से यिर्मयाह, परमेश्वर और फिर लोग किस प्रकार से वो हैंडल कर रहे थे। ओके, इसको मैं पढ़ते हुए समझते जा रही हूँ और आप भी उसे सीखिए किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किए थे अपने समय को, वो कठिन समय को। फर्स्ट वर्स से In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, came this word unto Jeremiah from the Lord, saying, Thus saith the Lord to me, Make thee bonds and yokes, and put them upon thy neck, and send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the Ammonites, and to the king of Tyrus, and to the king of Zidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem unto Zedekiah king of Judah. And command them to say unto their masters, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Thus shall ye say unto your masters, I have made the earth, the man and the beast that are upon the ground, by my great power and by my outstretched arm, and have given it unto whom it seemed meet unto me. And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and the beasts of the field have I given him also to serve him.
and all nations shall serve him, and his son, and his son's son, until the very time of his land come, and then many nations and great kings shall serve themselves of him. And it shall come to pass that the nation and the kingdom which will not serve the same Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon, that nation will I punish, saith the Lord, with the sword, and with the famine, and with the pestilence, and until I have consumed them by his hand. Therefore hearken not ye to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, Ye shall not serve the king of Babylon. For they prophesy a lie unto you, to remove you far from your land, and that I should drive you out and you should perish. देखो, ओके, शैतान बहुत अकल चलाता है अपनी, निर्बुद्धि है वो, लेकिन उसके पास ट्रिक बहुत ज़्यादा है। आपको ही नेगेटिव माइंड देके वो आपको ही परमेश्वर के सामने झुका देता है। ओके, आप परमेश्वर के सामने ऐसे हो जाते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, और परमेश्वर बोलता है क्या हो गया तुझे, नेगेटिव क्यों हो रहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू शांत रह, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ। और हम उसको बोलते हैं नहीं नहीं, तू तो कुछ करता ही नहीं है, तू तो कुछ करता ही नहीं है। ओके, हमारे मुंह से परमेश्वर की निंदा करवाता है वो, और फिर परमेश्वर बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं करता ना, ठीक है मैं भी कुछ नहीं करता, यही सच है, जा अभी तो। ओके, तो इस प्रकार से शैतान अपने ट्रिक्स को यूज़ करता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना अकल बड़ी की भैंस बड़ी। ओके, तो हम लोग ऐसे हैं कि हम भैंस जैसे बिहेव करने लगते हैं, लेकिन शैतान ऐसा है कि वो अपनी झूठी अकल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके हम खुद ही परमेश्वर के दुश्मन जैसे बिहेव करने लगते हैं। ओके, और परमेश्वर से मार खाते हैं। ठीक है, 11 वचन से हम पढ़ेंगे 11 वर्स से। आप जब मैं हिंदी में पढ़ूंगी 9, 10, तब आप देख लेना मैं क्यों हंस रही थी ये बात के लिए। 11 verse से आगे, but the nations that bring their neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, those will I let remain still in their own land, saith the Lord, and they shall till it and dwell therein. I spake also to Zedekiah king of Judah according to all these words, saying, Bring your necks under the yoke of the king of Babylon, and serve him and his people, and live. Why will ye die, thou and thy people, by the sword, by the famine, and by the pestilence, as the Lord hath spoken against the nation that will not serve the king of Babylon? Therefore hearken not unto the words of the prophets that speak unto you, saying, Ye shall not serve the king of Babylon, for they prophesy a lie unto you. For I have not sent them, saith the Lord, yet they prophesy a lie in my name, that I might drive you out, and that ye might perish, yea, and the prophets that prophesy unto you. Also I spake to the priests and to all these people, saying, Thus saith the Lord, hearken not to the words of your prophets that prophesy unto you, saying, Behold, the vessels of the Lord's house shall now shortly be brought again from Babylon, for they prophesy a lie unto you. Hearken not unto them, serve the king of Babylon, and live. Wherefore should this city be laid waste? But if they be prophets, and if the word of the Lord be with them, let them now make intercession to the Lord of hosts, that the vessels who are left in the house of the Lord, and in the house of the king of Judah, and Jerusalem, go not to Babylon. For thus saith the Lord of hosts concerning the pillars, and concerning the sea, and concerning the bases, and concerning the residue of the vessels that remain in this city, which Nebuchadnezzar
king of Babylon, took not when he carried away captive Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem. Yea, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that remain in the house of the Lord and in the house of the king of Judah and of Jerusalem. They shall be carried to Babylon, and there shall they be until the day that I visit them, saith the Lord. Then will I bring them up and restore them to this place. Chapter 28. Hananiah's false prophecy. He breaks Jeremiah's yoke. Jeremiah foretells of an iron yoke and Hananiah's death. First verse say, and it came to pass the same year in the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, in the 4th year, and in the 5th month, that Hananiah the son of Azur the prophet, which was of Gibeon, spake unto me in the house of the Lord, in the presence of the priests and of all the people, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, the God of Israel, saying, I have broken the yoke of the king of Babylon. Within 2 full years will I bring again into this place all the vessels of the Lord's house that Nebuchadnezzar, king of Babylon, took away from this place and carried them to Babylon. And I will bring again to this place Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah that went into Babylon, saith the Lord, for I will break the yoke of the king of Babylon. Then the prophet Jeremiah said unto the prophet Hananiah in the presence of the priests and in the presence of all the people that stood in the house of the Lord. Even the prophet Jeremiah said, Amen, the Lord do so. The Lord perform thy words which thou hast prophesied, to bring again the vessels of the Lord's house and all that is carried away captive from Babylon into this place. Nevertheless, hear thou now this word that I speak in thine ears and in the ears of all the people. The prophets that have been before me and before thee of old prophesied both against many countries and against great kingdoms, of war and of evil and of pestilence. The prophet which prophesieth of peace, when the word of the prophet shall come to pass, then shall the prophet be known that the Lord had truly sent him. Then Hananiah the prophet took the yoke from off the prophet Jeremiah's neck and brake it. And Hananiah spake in the presence of all the people, saying, Thus saith the Lord, even so will I break the yoke of Nebuchadnezzar, king of Babylon, from the neck of all nations, within the space of 2 full years. And the prophet Jeremiah went his way. Then the word of the Lord came in unto Jeremiah the prophet, after that Hananiah the prophet had broken the yoke from off the neck of the prophet Jeremiah, saying, Go and tell Hananiah, saying, Thus saith the Lord, Thou hast broken the yokes of wood, but thou shalt make for them yokes of iron. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, I have put a yoke of iron upon the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar king of Babylon, and they shall serve him. And I have given him the beasts of the field also. Then said the prophet Jeremiah unto Hananiah the prophet, Hear now, Hananiah, the Lord hath not sent thee, but thou makest this people to trust in a lie. Therefore thus saith the Lord, Behold, I will cast thee from off the face of the earth. This year thou shalt die in the name of Jesus Christ. देखा किस प्रकार से शैतान काम करता है। जब मैं बाइबल पढ़ रही हूँ तो वो मुझे कुछ गंदी बातें सुना रहा है। हाँ, जैसा ऐसे सुना रहा है वो मुझे, जैसे कि मैं उसकी करने की प्रसन्नता में हूँ। हाँ, जैसे जिस प्रकार से वो करनी किया है मेरे ऊपर, मैं उसके साथ खुश हूँ।
ऐसा उसको वो मुझसे बातें कर रहा है। इसके लिए मैंने ये वचन को यीशु के नाम में ऐसे बोला, डाई इन द नेम ऑफ जीसस। ओके, देखो आगे पढ़ेंगे। बिकॉज thou hast taught rebellion against the Lord, so Hananiah the prophet died the same year in the 7th month। ऐसा है क्योंकि देखो, जब शैतान का एजेंट ट्रिक चलाता है ना, उसके ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रिक है उसकी, समझा। अगर उस ट्रिक में फंस गए आप, फिर वो बंधुआई से आप बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ट्रिक करता है वो, ट्रिक समझ लीजिए इस बात को। हाँ, वो अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, वो वाली बात है उसके पास ताकत नहीं है, वो अकल चलाता है। अधिकार नहीं है उसके पास, ताकत नहीं है उसके पास, फिर भी वो कैसे अपने झूठ के अकल को इस्तेमाल करता है हमको मूर्ख बनाने के लिए, है ना। अब समझो फॉर एग्जाम्पल, वो किसी ने आपको एक अच्छी सी मिठाई दे दी, ठीक है, और अगर उसके अंदर पॉइजन रखा है, उस आपको मालूम नहीं है, मिठाई तो आपको पता है आपको किसी ने दी है, तो वो मिठाई देने के बाद क्या पूछेगा, है ना, कि मीठा तो है ना, खाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, मीठा तो है ना, आपको, आपके लिए तो वो मिठाई है ना, आपके लिए तो मिठाई है ना वो, है ना, तो खाने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रकार से वो आपको झूठ छुपा के रखता है कि उसके अंदर पॉइजन है, समझा। तो इस प्रकार का है उसका काम। वो आपको ऐसा कुछ तो देता है कि आपको ये कहने के लिए वो मजबूर करता है, हाँ हाँ अच्छा है, ठीक है, ऐसा कहने के लिए मजबूर करता है वो, ठीक है। नहीं 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 शैतान तो झूठा है, और तेरे पास झूठ के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ झूठ ही है तेरे पास, और नाश के लिए है तू। तेरे पास कुछ नहीं है जिसके अंदर से तू हमको कुछ दे पाएगा। आई हेट यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तेरे कोई भी कामों के अंदर मेरी सहमति नहीं है, तेरे कोई भी इरादों के अंदर, तेरे कोई भी बातों के अंदर मेरी हाँ में हाँ नहीं है। मैं तुझसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, नासरी यीशु के नाम में। जो परमेश्वर का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, नासरी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा, 26 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। योशिय्याह के पुत्र, अब मैं आपको बताया ना जो डील कैसे कर रहे थे वो लोग अपने मुसीबत का समय, और परमेश्वर कैसे उनके बीच में काम कर रहा था, हमको वो पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा, ठीक है। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तो उनसे कहे, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो, और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़े यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा, और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी के सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। ये बात अब हिंदी में पढ़ने से आपको पता चलेगा, है ना, कि परमेश्वर मौका देता है, अवसर देता है मन फिराने का। अगर फिर भी आप मन नहीं फिराएंगे तो 6 वचन ओपनली परमेश्वर बता रहा है, क्या बता रहा है, कि तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। हालेलुया।
तो हमारी कहने की बातें ध्यान देने वाली बातें होती हैं। हम जब मन फिराव कह रहे तो ख़त्म करो बात को। आपके आगे के इरादे बंद करना ही आपके लिए बेहतर रहता है ना। 7 वचन से आगे, आपके लिए बोलती हो तब वो मेरे लिए भी रहता है, उसमें मेरी भी गिनती रहती है। ठीक है। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। सात वचन से और एक बार पढ़ेंगे। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यद्वाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। 10 वचन से आगे, यहूदा के हकीम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हकीमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो कुछ तुम्हारी सृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो, पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा के सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मिकायाह भविष्यद्वाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमाया का पुत्र उर्रिया नामक किर्यत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यद्वाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यद्वाणी की और यिर्मयाह ने अभी की थी। जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हकीमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया और उर्रिया यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे उर्रिया को
मिस्र से निकालकर यहोयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवा कर उसके शव को साधारण लोगों के कब्रों में फेंकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। 27 अध्याय पहले वचन से। यिर्मयाह का गर्दन पर जुआ। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपने 27 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बंधवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यो कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपने बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे। ये सब जातियाँ उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियाँ और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। पर जो जाति या राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, और उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूं। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यद्वक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनहों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। ये ट्रिक रहती है दुष्ट आत्माओं के एजेंट्स के। ओके, जब वो उनके तरीके आपके ऊपर लगाते हैं ना, तो वो ट्रिक चला के आपको उनके उस जुआ के नीचे, उस बंधन के नीचे पकड़ के रखते हैं। 11 वचन से आगे, परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तो बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसके और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रहे। जब यहोवा ने उस जाति का विषय जो बेबीलोन के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नष्ट होगी, हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यद्वक्ता तुझसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा।
तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन से लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए, यदि वे भविष्यद्वक्ता भी हो, और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बेबीलोन न जाने पाए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांद, गंगाल और कुर्सियां और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे भी बेबीलोन में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वही रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। 28 अध्याय यिर्मयाह और हनन्याह नबी, पहले वचन से। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान में उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन, यहोवा ऐसा ही करे। जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को कहे सुनाता हूँ। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों को गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कहे, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ, और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे।
और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं उसके वश में कर देता हूँ। परमेश्वर हमारे वश में कर देता है शत्रुओं के शक्तियों को और शत्रुओं को, ध्यान रखना है। ओके, परमेश्वर हमारे वश में करके देता है। हम नहीं, हमारे पास काबिलियत नहीं है। हमको परमेश्वर वो एरिया ऑफ लाइफ हमको कॉन्फिडेंस में देना चाहिए कि उसने हमारे वश में कर दिया है शत्रु के प्रधानताओं को और उसके शक्तियों को और उसके सारी कारीगरी को। ये हमको परमेश्वर की ओर से कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर परमेश्वर के ओर से कंफर्मेशन हो गया है और फिर हम युद्ध में उतर चुके हैं तो हम जीतना ही जीतना है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ रहता है, हमारे हार या जीत को डिसाइड करता है। क्या हम बने रहेंगे युद्ध में या हम मैदान छोड़कर चले जाएंगे, ये रहता है, ठीक है। तो आपको वचन सुनना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि परमेश्वर हमारी ओर से है और उसने शत्रु को हमारे वश में दिया है। जब ये हमारे आत्मविश्वास में उतर कर आया तब जाके आप मैदान में उतरना है और फिर आप फाइट करना है और आप जीत कर बाहर आते हैं, समझा। तब आप झूठ बातों को नहीं सुनते हैं, शैतान के ट्रिक और चालाकियों के आप अधीन नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कैसे शैतान के एजेंट कैसे सुना रहे थे मुझे जब बाइबल पढ़ रही थी, तभी क्या हो गया, अच्छा ही तो कर रहे हैं हम, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा तो लग रहा होगा ना तुझे, इतना गंदा काम हम कर रहे तो तुझे तो वो फील तो अच्छा ही होता होगा ना, ऐसा सुना रहे थे। ओके, तो मैंने तो ये बताया ना आपको कि स्वीट जैसे दिया जाता है तो कोई थोड़ी बोलेगा कि ये गंदा है ना, लेकिन उसके अंदर पॉइजन है, जिसको मालूम है वो नहीं खाएगा। हालेलुया। तो इसकी वजह से हमारे साथ कोई भी ऐसा बर्ताव जो हमको फील या महसूस या कोई फ़ायदा जो शैतान के आत्मा को लगाकर किया जाता है, कम ऑन, आई हेट यू शैतान, मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तुझ में ऐसी ताकत नहीं है कि तू मुझे तेरी कुछ चीज़ों से तसल्ली दे पाए। तुझ में तसल्ली तो पहली बात है ही नहीं और तसल्ली देने के रास्ते तो तुझे पता भी नहीं है। तू ऐसा खौलता हुआ दुष्ट है जिसका समंदर का पानी नीचे की ओर से सारी गंदगी को ऊपर उछालता रहता है। तेरे में शांति ही नहीं है, तू क्या मुझे कुछ दे सकता है। शैतान तू झूठा है और तेरी कोई तसल्ली मुझे नहीं चाहिए, तेरा कोई आनंद मुझे नहीं चाहिए। तेरे आनंद से मैं नफरत करती हूँ, लताड़ती हूँ, कुचलती हूँ और धिक्कारती हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस प्रकार से आपको शैतान को लताड़ना पड़ता है जब वो उसके ट्रिक चलाकर आपके मन को उसके उस गंदे कामों में फंसाए रखना चाहता है, ठीक है। 16 वचन से आगे, इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। हालेलुया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब परमेश्वर वश में कर देता है और फिर जब परमेश्वर उनके लिए जजमेंट की बात बोल देता है, फिर परमेश्वर को कोई रोक नहीं पाता है। हाँ, तो आपका परमेश्वर के संगति का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर शत्रु को आपके वश में दिया है। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास प्रभु यीशु मसीह में था। इसके लिए वो क्रूस का बलिदान सहन लिया, उसने क्रूस के ऊपर जो कुछ भी उसके ऊपर किया गया वो सब सह लिया। वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा और फिर वो नरक में भी शैतानी आत्माओं के बीच में शैतान के हाथों में था और वहाँ पर भी वो विश्वास योग्य रहा, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है और उसने जो वायदा किया है यीशु मसीह को वो पूरा करके रहेगा। हालेलुया। ये एरिया ऑफ लाइफ हमको समझना चाहिए। जब हम मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो यीशु मसीह का सफ़र याद कीजिए, वो कैसा मैदान में उतरा था। क्रूस के बलिदान से लेकर वो मृत्यु तक कैसा विश्वास योग्य रहा और पुनरुत्थान होने तक उसने कैसे बाट जोहते रहा, शांति से परमेश्वर का भरोसा रखते हुए। समझा? तब हम मैदान के ऊपर जीत का झंडा फहराते हैं। आमीन।
तो आप झूठी बातें शैतान की उसमें नहीं फंसना है। इसके लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई कि परमेश्वर में कॉन्फिडेंस बनाने की आपकी हमारी सबकी ज़रूरत है। नासरी यीशु के नाम में हमें परमेश्वर सहायता कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहा है, इसीलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 8 चैप्टर 12 वर्स से 21 वर्स, 2 किंग्स 19 चैप्टर 20 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन से 21 वचन, दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय 20 अध्याय। हम अपने व्यक्तिगत समय में ये 2 साल का बाइबल रीडिंग पूरा पढ़ना है। अब आपको पता चला वचन का महत्व कैसा रहता है कि वो बुद्धि देता है हमको, वो कुछ समय के लिए हमको, पुराने वक्त में परमेश्वर कैसा डील करता था, लोग कैसे बर्ताव कर रहे थे लोग एक दूसरे के साथ, परमेश्वर कैसे भविष्यद्वक्ता के साथ उनके बीच में काम कर रहा था, ये देखने के लिए हमको मौका मिलता है। ओके, हमें सिखाता है पवित्र आत्मा। तो जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है उसकी डगर अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे कैसे उस मंजिल तक। हालेलुया। तो हमारी ये डगर है, अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ना है, पवित्र आत्मा से सीखना है, और निश्चित है कि हमने परमेश्वर के इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद कहते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, इसीलिए धन्यवाद। हमारे अंदर तू ईश्वरीय रचना को लेकर आ रहा है और हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में तैयार कर रहा है, इसीलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन।